मार्केट गिरता है तो सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं, आपका पेशेंस और कन्विक्शन दोनों टेस्ट होते हैं। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है या बेरिश सेंटिमेंट आता है, तब आप क्या करते हैं? होल्ड करते हैं या पैनिक में सेल? रियलिटी ये है कि मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट्स अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। इसीलिए एक फेमस लाइन है, Markets can remain irrational longer than you can remain solvent. सिंपल वर्ड्स में, मार्केट आपको गलत लग सकता है, बट वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम तक वैसे ही बिहेव कर सकता है, और तब तक आपका पेशेंस या कैपिटल प्रेशर में आ जाता है। तो ऐसे टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? आज के वायरल रिएक्ट में हम आपको नहीं बताएंगे कि मार्केट गिरने पे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। इंस्टेड हम देखेंगे कि मार्केट के रियल वेटरन्स जैसे हार्वर्ड मार्क्स, रामदेव अग्रवाल, पीटर लिंच और विजय केडिया ऐसे फेज में एक्चुअली कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद हार्वर्ड मार्क्स, को-फाउंडर ऑफ ओक ट्री कैपिटल और ग्लोबली रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर, जिनके मार्केट इनसाइट्स काफी वाइडली फॉलोड होते हैं। चलिए देखते हैं उनका पर्सपेक्टिव क्या है। We concluded in late '08, after the bankruptcy of Lehman Brothers put the markets into free fall, that will the financial world end or not? And what we said was that it's hard to predict the end of the financial world. If you conclude that the financial world will end, it's hard to have any idea what to do. And most of the time, the financial world doesn't end. We also made a very simple calculation. Should we buy or not? Well, if we invest and the financial world ends, kind of doesn't matter. But if we don't invest and the financial world doesn't end, then we didn't do our job. So by that, here we are in an environment where really people had no idea what was coming next, and we're talking about the end of the world. And I thought the analysis was rather simple, that we had to buy. So at Oaktree, we invested $650 million a week in the last 15 weeks of '08. That's about $10 billion. And that's really all you had to do. It almost didn't matter what you did, as long as you bought. And it was a point in time in the cycle, and these points in time come along every once in a while, where you don't need conservatism, caution, risk control, discipline, patience, or selectivity. You need money and the nerve to spend it. As we just saw in the clip, Howard Marks keeps it very simple. जब मार्केट में एक्सट्रीम फियर होता है, लोग सबसे एक्सट्रीम आउटकम्स इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल मार्केट ऑलमोस्ट कभी ट्रूली एंड नहीं होता। क्राइसिस आते हैं, पैनिक होता है, बट इवेंचुअली सिस्टम अडेप्ट करता है और रिकवरी आ ही जाती है। इसीलिए बेयर मार्केट में बिगेस्ट रिस्क लॉस नहीं होता, बिगेस्ट रिस्क होता है स्टेइंग आउट। आपको परफेक्ट क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी, बस इतना कन्विक्शन चाहिए कि जब सब डर रहे हो तब आप एक्ट कर सको। रामदेव अग्रवाल, ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझ लिया, अब इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं विद रामदेव अग्रवाल, co-founder of Motilal Oswal Financial Services and one of India's most respected long-term investors. आइए देखते हैं वो ऐसे फेज को कैसे देखते हैं। During a bear market, what are the behavioral traits that you need to inculcate to hold on to a stock even if it falls 20, 30, 40%? Because I've noticed that the best investors are those who can wade through that phase. Yeah. So say you buy a stock, any stock, right? Say, just for example, say Polycab. Now bear market comes and that stock has fallen 40% because it's momentum. What do you do? You sit through. See, because you understood the company. The company's journey is not getting over because the market is down. See, company you bought at 100, it went to 1,000. Okay, you still think that the stock in 10 years, it can go to 10,000. But the markets are crazy. The 1,000 can come down to 500 or 300. You have to sit through. You have to sit through. So at what point do you sell? You sell when you get a better idea. Or you find that now enough is enough. Say like an auto company, if they are not good in EV, so then transition is happening.
It is better that you move on to the somebody who is better in the EV and all. So like that, or you get some brilliant idea, which you think is far superior at this point than the one you are existing. So then you do the transition, Okay. So if you are successful in what you have bought, focus on buying the right company at right price. If you have done that, 99% of job is done. Then when your company has already become, say you bought at 100, it has become 1000. Now you have the luxury of, if you find another idea at 10, obviously you must slash, say 10% of that existing one and put that out of 1000, you put 100 onto the new idea. You say you sell 500, you still have the 500, and 500 you put in 5 more new ideas. Of that, maybe 1 or 2 will do well, 2, 3 will fall by the wayside, and that's how you keep building it up. Don't stay in cash. That's my call. Acha. I never stay in cash. Good time, bad time. Okay. Yeah, and I'm always for last, even before I met Buffett, from 87 I have never been in cash. I have not seen cash in my balance sheet. But now Buffett is in cash himself. That is his call. अगर स्टॉक 30 to 40% गिरता है, जरूरी नहीं कि बिजनेस खराब हो गया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ प्राइस गिरता है और बिजनेस सेम रहता है। इसीलिए फोकस प्राइस पे नहीं, बिजनेस पे होना चाहिए। अगर फंडामेंटल्स इंटैक्ट है तो रियल टेस्ट पेशेंस का है, और सेल तभी करना चाहिए जब थीसिस ब्रेक हो या क्लियरली बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। अब यहाँ उनका एक और पावरफुल पॉइंट कनेक्ट होता है, नेवर स्टे इन कैश, क्योंकि मार्केट रिकवरीज का वेट नहीं करती, ऑफन वी शेप में आती है। आप फियर में एग्जिट करके कैश में बैठ जाते हो, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया होता है। इसीलिए एंड में गेम सिंपल है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। अब इसी बात को क्लियरली समझते हैं विद पीटर लिंच, लेजेंडरी फंड मैनेजर जिन्होंने फिडेलिटी मैगेलन फंड को कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में कन्वर्ट किया। Let's hear his views. I was very consistent. The market went down when I ran Magellan. On 13 years, the market went down 9 times, and every time the market went down, Magellan went down. I was 9 for 9, and because it's very important. This is another one of these numbers you ought to write down. If you put $1,000 in a stock, all you can lose is 1,000. I've done that several times, and but if you're right, you can make 5,000, 10,000, 20,000. So this business, you don't have to be right 1 or 2 times. You can be right 1 out of 4. It's a long time. The times you're right, you know the company's doing well, you know they're doing a great job, and you add to it, or at least you don't sell it, which is a terrible tragedy. So you can make more money on the upside. So I just wrote those out, and I will now flip a coin to tell you where the market will go to 4,000 this year or next year. Heads means it goes up. It's a 2-headed coin. The market will go up in the next year. That's it. That's all I ever know about the stock. मार्केट की वॉलेटिलिटी तो नॉर्मल है, लेकिन असली चैलेंज हमारे बिहेवियर में आता है। हम छोटे से फॉल में पैनिक कर देते हैं, और जब कोई स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और धीरे धीरे पैटर्न बन जाता है। विनर्स जल्दी एग्जिट हो जाते हैं और लूजर्स पोर्टफोलियो में अटके रहते हैं। एग्जैक्टली लाइक कटिंग द फ्लावर्स एंड वाटरिंग द वीड्स। लिंच का कोर पॉइंट ये है कि वेल्थ तब बनता है जब आप अपने विनर्स को टाइम देते हो ग्रो होने का। आपको हर स्टॉक में राइट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सही निकले उन्हें जल्दी एग्जिट कर देना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अब बात करते हैं विजय केडिया की, वेल नोन इन्वेस्टर जो अपने मल्टी बैगर बेट्स के लिए जाने जाते हैं, और समझते हैं कि बेयर मार्केट को वो कैसे देखते हैं। 2003 के पहले शेयर बाजार के अंदर में जो भी बुल मार्केट और बेयर मार्केट होते थे, उसमें बुल मार्केट छोटे होते थे और बेयर मार्केट बड़े होते थे। 2003 के बाद में ड्रामेटिक चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ बुल मार्केट के अंदर में, और पहली बार मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा, जो इतिहास पढ़ा है, कि बुल मार्केट चला 5 साल, 2003 से लेकर 2007 तक या 8 तक, जो भी 8 मार्च या जो भी चला होगा, वो लंबा बुल मार्केट चला। और इतनी बड़ी क्राइसिस आई कि लीमन ब्रदर्स की जो क्राइसिस है वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी, गोल्डन वर्ड्स के अंदर में। इतनी बड़ी इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइसिस आई, 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट खत्म हो गया। माने टॉप जो बॉटम बना और वहां से जो मार्केट रिवाइव हुआ वो 9 महीने में हो गया। उसके बाद में भी आप ये समझिए कि कोविड की, आप सोचिए कोविड से बड़ा क्या हो सकता है, एक सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, वो बेयर मार्केट 9 महीने के अंदर में खत्म हो गया। तो मेरे को ये समझ में आया है कि ये बुल मार्केट जो सीजन है, ये बुल मार्केट अभी लंबे होने लग गए हैं और बेयर मार्केट छोटा होने लग गया। ये बुल मार्केट भी आप देखिए 2009 से लेकर 2014 के अंदर में डेटा ये बताएगा कि ये बुल मार्केट नहीं है। 2000 लोग बोलते हैं 14 से चालू हुआ है, लेकिन आपको सबको मालूम होगा, आप या वापस जाकर अपना डेटा देखिए,
2008 से 14 के बीच में भी ऐसे ऐसे शेयर थे जो 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना हुए हैं, जो कि टेक्निकल डेटा के हिसाब से उसको हम बुल मार्केट नहीं बोला जाता है। उसके अंदर में भी 50-50 गुना शेयर्स हुए हैं। तो कहने का मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये लग रहा है कि जो इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस दुनिया ने देखी और 9 महीने के अंदर में बेयर मार्केट चेंज हो गया, इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि बुल मार्केट लंबे हो रहे हैं, बेयर मार्केट छोटे हो रहे हैं। यहाँ विजय केडिया एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हाईलाइट करते हैं। उनके हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले बेयर फेजेस लॉन्ग होते थे, अब क्रैशेस भी फास्ट होते हैं और रिकवरीज भी काफी क्विक आ जाती है। सिंपल वे टू लुक एट इट इज आज मार्केट ज्यादा टाइम तक आपको वेट नहीं कराता, लेकिन अपॉर्चुनिटी विंडो भी उतनी ही शॉर्ट होती है। और एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट ये भी है कि वीक फेज में भी मार्केट क्वाइटली वेल्थ क्रिएट करता रहता है। तो रियल गेम टाइमिंग प्रेडिक्ट करना नहीं है, रियल गेम है मार्केट में रहना एंड नॉट मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। कंक्लूजन, आज के वायरल रिएक्ट में हमने देखा कि डिफरेंट मार्केट वेटरन्स कैसे सोचते हैं जब मार्केट टफ फेज में होता है। चाहे हॉवर्ड मार्क्स का काम लॉजिक हो या रामदेव अग्रवाल का कन्विक्शन, पीटर लिंच का बिहेवियर इनसाइट या विजय केडिया का चेंज इन मार्केट साइकिल का पर्सपेक्टिव, एक चीज क्लियर है, मार्केट फेजेस आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सही माइंडसेट के साथ टिके रहता है वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अगर आपको ऐसे और वायरल रिएक्ट्स देखने हैं जहां हम रियल इन्वेस्टर्स के इनसाइट को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Happy investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.